Hello everyone, here Ritika and welcome to my channel to all the lovely people watching me. So today we are going to check the energies of a person for you. So you have to choose between these two cards. This is going to be pile number 1 and this is going to be pile number 2. So let's see what are the energies of your person for you, and if you want to book a personal session with me so that you can get the detailed reading, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं through the details mentioned in the description box. Also, one more thing, I do provide tarot reading course, so if you want to learn at a very affordable price, so you can check the description box and you can contact me there from there. So let's see. For this pile, you can pause and select intuitively. शांत हो जाएं, be in a calm state, and then choose the card whichever you are attracted to. So first of all, we are going to check for this. Okay, so heavy burden energies हैं. Maybe one person is feeling, or either the other person or you are feeling like this relationship is burdening you in a sense. There is no stability and a lot of challenges also I'm seeing. One person is feeling that they are carrying all the load, or you can say all the burden on themselves, on their shoulders. So yeah, also there is very prominent energies about hands. कोई बहुत prominent है कोई चीज़ हाथों को लेकर, मे बी द शेप और मे बी कोई और चीज़ हो सकती है, but most probably it is the shape. Maybe it is muscular or something like, but this is maybe you like your person hands, ऐसा भी हो सकता है. Okay, so and also I'm seeing is there one person is walking away. Maybe you are walking away or the other person is walking away. Okay, so let's see. First of all, I'm going to check what are the general energies of your I would say relationship. इन जनरल आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू चेक दैट फर्स्ट. ओके, सो पाइल नंबर 1, जनरल एनर्जीज क्या हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में. ओके, अगेन ओके, सो देयर इज अगेन द एनर्जी ऑफ वॉकिंग अवे. इमोशनली फुलफिल्ड चीज़ें नहीं हैं. ऑल्सो यू आर मेकिंग अ बाउंड्री. मे बी यू और अदर पर्सन इज़ मेकिंग द बाउंड्रीज विद ईच अदर, एंड कोई चीज़ हर्ट की है उनको बहुत ज़्यादा या आपको की है. ये जनरल एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की. हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करें या आपके पर्सन के साथ हो रही हूँ, बट वन पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग टू वॉक अवे, और मे बी समथिंग दे आर होल्डिंग द ग्रजेस. मे बी कोई बात हुई है, कोई कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जो हो सकता है आपकी बातों को किसी चीज़ को उनको बुरा लगा हो. सो दे आर इन द मूव, और they are in the mood to move out of the situation or move out of the chaos, I would say. जो भी burden feel हो रहा है चीज़ों को, या फिर this can be you too. So maybe you are thinking to walk away, but also there is one thing that has come out is communication. Sudden good communication or sudden good news आई है. So maybe this is you, or maybe you are thinking to walk away and your person is suddenly sending you message or some good news. Okay, so if this resonates, then you can watch the, or also one more thing is the other person is trying to go towards peace or creating peace in the relationship, ऐसा भी हो सकता है. So एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं चीज़ों को. में भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, एंड देन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ का कार्ड. बाउंड्रीज़ बार बार बहुत प्रोमिनेंटली आ रही हैं. सो और ऑल्सो मे बी वन पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द बाउंड्रीज से स्ट्रगल कर रहे हैं. सो लेट्स सी चेक आपके. इफ दिस रेजोनेट्स देन this is for you. If this is not resonating, then you can skip, because these are the general readings and may or may not resonate with you. और because sometimes we intuitively pick करते हैं, तो बहुत बार हम शांत नहीं होते हैं तो intuition वर्क नहीं करती है.
So let's see for this pile. If this resonates, then what are the energies of your person for it? Okay, I'm getting to check your energies first. I'm getting the message. So first of all, I'm going to check your energies. Okay, a lot of cards have come out. Okay, ठीक है. सेम कार्ड्स आपके लिए आए हैं. अब आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है. मे बी यू आर ट्राइंग टू वॉक अवे एंड मे बी आपने बहुत काम किया है अपने रिलेशनशिप पे और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं. आपने बहुत ट्राई किया है चीज़ों को सॉल्व करने का बट यू आर नॉट एबल टू डू इट एंड आपने बहुत हिम्मत दिखाई है. ऑल्सो हो सकता है कि आपने अपने फियर्स को फेस किया हो एंड देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी कमिंग. पीस की एनर्जीज हैं, इनफाइनाइट स्टेबिलिटी की एनर्जी है जो आपके अंदर है, आपके अंदर करेज है. सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू. So you most probably you are trying to walk away from this relation because something is burdening you and you're holding to the things that are hurting you. Okay, so let's see what are the energies of a person. I'm getting to pull out one card too. Okay, so you also want to, there is also energy that आप चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, साथ लेके आना चाहते हैं, बट यू ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम. So okay, so but somewhere also you are struggling with the burdens or the communication or maybe you are hurt जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं and you are showing a lot of courage in this relationship to solve the burdens or the challenges that you are going through. Okay, so also there is a very prominent something about eyes. आँखों को लेकर बहुत ज़्यादा कोई prominent है चीज़ें. So let's see what are the energies of your person for you people. What are the energies of your person? Okay, so again your energies of your person for you आई जो आपके लिए. There is a strong sense of misunderstandings. हो सकता है आपके पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में और सच को नहीं देख पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे. मे बी कोई डिसीज़न लेना है या रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है एंड दे आर समवेयर स्टक. मे बी कोई इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला है या फिर चैलेंजेस की बहुत ज़्यादा वजह से वो स्टक फील कर रहे हैं. और मे बी ऑल्सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ मे बी दे आर फीलिंग बिट्रेड. और अगर आपके साथ उन्होंने कोई मे बी देयर इज़ अ सेंस ऑफ चीटिंग और समथिंग लाइक दैट तो उनको उसका रिग्रेट करना चाहिए. बट समवेयर दे आर इन द मिडल ऑफ कि वो एक्सेप्ट करें अपॉलजी प्रोवाइड करें या नहीं करें. दिस इज़ द सिचुएशन. योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग अ बिट ईगोइस्टिक भी हो सकता है. वो थोड़ा ईगो दिखा रहे हो आपको, लेकर बाहर से बहुत शो कर रहे हैं कि दे आर इन इमोशनली फुलफिल्ड बट समवेयर दे आर नॉट इमोशनली फुलफिल्ड फ्रॉम विद इन. आपको आपके बारे में मे बी वो इतना स्ट्रांगली फुलफिलमेंट फील नहीं कर रहे हैं अभी. सो ऑल्सो एक नई बिगनिंग भी नहीं हो रही है, एक न्यू बिगनिंग्स रिलेशनशिप में चाहते हैं. फ्रेश बिगनिंग्स हो रही हैं. लव, देयर इज़ नो एफर्ट्स एंड देयर आर डिलेज इन द फीलिंग इमोशंस. हैप्पीनेस नहीं है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है कर रहे हैं वो आपके पर्सन. ऑल्सो स्टेबिलिटी है बट द पर्सन इज़ नॉट ट्राइंग टू अचीव दिस. दे आर ट्रैप्ड इन देयर थॉट्स अ लॉट. What I am saying is also they are thinking like there is no help coming from the universe जो उनको हेल्प करे चीज़ों में. एंड ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ वो उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से उनको देखना चाहिए. मे बी दे आर नॉट दे आर इन द सिनेरियो ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू.
आपके बारे में कोई चीज़ या आपने कुछ बोला है जो उनको जिस तरीके से देखना चाहिए बट उन्होंने नहीं देखा है. So yeah, let's see what is the future of this connection, and let's see what is the next move of the person towards you. Okay, so things are coming into alignment, but before that you have to surrender. फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है कि अलाइनमेंट आने वाला है. मे बी वन पर्सन इज़ गोइंग टू टीच द अदर पर्सन, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी से गाइडेंस लें, किसी टीचर से गाइडेंस लें या किसी से भी, बट देर इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गाइडेंस जो आ रही है. आपको किसी से गाइडेंस मिली या आप दोनों अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस लें, ऐसा नज़र आ रहा है. स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है. एंड ऑल्सो द फेमिनाइन इज़ इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ रहा है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एक स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है. सो इफ़ यू आर फीलिंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन और फाइनेंशियली, तो इंडिपेंडेंस आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आ रहा है. ट्रेडिशनल थिंग्स आर कमिंग इन टू रिलेशनशिप, लाइक बैलेंस इज़ कमिंग एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी आ रही है आपके रिलेशन में. जो सोच रही हैं, जो हो रहा है, दैट इज़ कमिंग इन टू अलाइनमेंट. ऑल्सो देर इज़ अ सेंस दैट आपको बट उससे पहले सरेंडर करना होगा. मे बी वन पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुल्ली सरेंडर टू द डिवाइन. कोई मे बी पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं और उनसे वो अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है. सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू सरेंडर और द अदर पर्सन. So this is the future of your relationship at this moment that has come. Okay, so if this has resonated with you and you like the video, so please do not forget to subscribe to my channel. And if you want a detailed reading, nearly 20 to 25 minutes reading, then you can check the description box for the details. So let's see, and please do not forget to subscribe to my channel if you like the video, and do not forget to hit the bell icon. So let's see what are the energies coming out for pile number 2 के लिए क्या energies हैं. Okay, so there is strongly something about communication. मे बी आपके पर्सन या फिर आप बहुत स्ट्रांगली उनके पास जाना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स सी. देर आर chances that you are protecting yourself, or maybe your person is protecting yourself or himself or herself, sorry. Okay, so also what I'm saying is एक बैकवर्ड नज़र चीज़ों को, मतलब जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है. या फिर आप बार बार देख रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन या फिर आप बार बार पुरानी चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं और उसको देख रहे हैं. सो पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको, सो एंड यूर और मे बी ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करने जा रहे हैं आगे रिलेशनशिप में. So let's see what are the general energies of your relationship. Point number 2. Okay. जनरल एनर्जीज, ठीक है. Okay, I think this is enough. Okay.
ओके, सो जनरल एनर्जीज जो आपके रिलेशनशिप की आई हैं, एक तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी नहीं है, या मे बी कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आई एम स्ट्रांगली सीइंग देयर इज समवन हु इज़ ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स. ओके, सम आउटसाइडर और समवन जो आपके पर्सन को थोड़ा सा they are trying to manipulate them, or you maybe someone is getting manipulated. But this is the general reading of your general energies of your relationship जो अभी चल रही हैं. So also there is the chance that there is a third party energy. Maybe it can be work, it can be friends, or someone who is trying to destroy your relationship. Also एक person है जो बहुत calm and composed way में act कर रही हैं. Maybe you are a very spiritual person, or maybe you do not show your true side or your emotions, and you are very calm and composed on the outside. You have a very good balance of practical and emotional things. Also, you are strongly connected to your intuition, you or your person maybe. So also one person is not expressing, बहुत express नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, जो है उसको वैसे ही दिखा रहे हैं. आई मीन दे आर नॉट शोइंग द ट्रू फीलिंग्स और द ट्रू इमोशंस. जो चीज़ें जैसी हैं उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट दे आर फीलिंग. आई एम ऑल्सो फीलिंग देयर इज़ सम काइंड ऑफ लीकेज इन द एनर्जी. कोई बात या फिर कोई एनर्जी में, but something is getting maybe one person is feeling backstabbed. I'm feeling like this. Also हो सकता है आपको the person who is acting very calm and composed, उनको ये बात मालूम है कि उनके पीछे से अगेन थर्ड पार्टी एनर्जीज, उनको मालूम है क्या वो आपके पीछे क्या चल रहा है. आई मीन लाइक से फॉर एग्जांपल समवन इज़ बिचिंग यू और बिचिंग द अदर पर्सन, और योर रिलेशनशिप के बारे में they are bitching to other people, but you know everything and you are acting calm and composed. You are not showing that you know everything. This is the energy that has come out. Okay, so you're strongly connected to intuition. Maybe this is a feminine energy I'm feeling. Also एक ऐसी एनर्जीज हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, अपोजिट हो रही हैं, एंड न्यू साइकिल्स नहीं स्टार्ट हो रही हैं. देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन द रिलेशन कमिंग एट दिस मोमेंट. फ्लो नहीं है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं. हाँ, ऑल्सो बट वन पर्सन इज़ मे बी यू और योर पर्सन इज़ वेरी पैशनेट एंड दे आर रेडी टू understand and give this relationship a chance. So this is the energy. So if this resonates, these are the general energies of your relation. So if this resonates with you, then you can continue watching the video. So let's see what are the energies of your person for you. आपकी current feelings क्या हैं, आपके person की आपके लिए current feelings क्या हैं. Okay, so for the people who have selected pile number 2, आपकी पर्सन की एनर्जीज अभी एट दिस मोमेंट दे आर इन द स्ट्रीट ऑफ रिग्रेट. मे बी उन्होंने आपके साथ एक चांस जो है मिस किया है, एंड आप उनको ऐसे लगता है कि आप जो है उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू, बट समवेयर आप भी कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहे हैं थोड़ा बहुत, बट दे आर थिंकिंग कि आप उनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके ऑफ़र को. मे बी उन्होंने पास्ट में जो है आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया उनके तरफ, बट दे वर नॉट अवेलेबल एट द टाइम, नॉट अवेलेबल एट द टाइम दैट यू इन्वेस्टेड योर एनर्जी, और अभी उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है. हालांकि देयर इज़ अ ऑप्शन, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं. मे बी यू आर अवेलेबल स्टिल इंटरनली, बट थोड़ा बहुत, बट दे आर फीलिंग लाइक कि उन्होंने आपको मिस कर, दे हैव मिस्ड चांस विद यू. देयर इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी and they're not confident enough to come towards you. They do not have the courage. They can't take the lead.
They are hiding their true feelings, their true intentions for you, and something has shocked them. Maybe आपके बारे में कोई बात या आपने या कुछ भी आपने कहा हो या कुछ भी हो सकता है, बट दे आर रियली शॉक्ड टू सी यू और योर मे बी आपको लेकर या आपके कोई स्टेप को लेकर, बट दे आर शॉक्ड, आपको लेकर बिल्कुल शॉक की स्टेट में है. ऑल्सो देर इज़ अ कन्फ्यूज़न, मे बी हो सकता है कि आगे आए या नहीं आए ऐसा करके, बट थाट्स में कन्फ्यूज़न की स्टेट है. दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, आपके पास आना तो वो चाहते हैं, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. वट आई एम फीलिंग इज दे आर कम्प्लीटली बर्नड आउट. देर इज़ अ ऑपोजिशन, आपको लेकर कोई स्ट्रांगली उनको अपोज कर रहा है. मे बी देयर फ्रेंड्स आर अपोजिंग द रिलेशनशिप और समवन, बट या मे बी आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स हो रही हो, बट आई एम फीलिंग इज दे आर रेडी टू गिव यू द ऑफर, बट दे आर स्ट्रगलिंग. आपको लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. बहुत बहुत ज़्यादा एक फाइट हो रही है उनकी एक्शंस को लेकर, जो वो एक्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो डिसाइड किया है. मैनी पीपल आर ऑपोजिंग देयर एक्शंस. आपको लेकर हो सकता है कि वो कोई फ्रेंड हो जिसको पसंद ना आ रहा हो, और मे बी आपकी रीडिंग में कम्प्लीटली आया है क्लियरली कि देयर इज़ समवन हु इज़ विचिंग वन पर्सन, एंड मे बी हो सकता है वही हो जो मैनिपुलेट कर रहे हों. दे आर समवन इज़ मैनिपुलेटिंग योर पर्सन, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, दे आर नॉट गेटिंग मैनिपुलेटेड एंड दे आर फाइटिंग फॉर यू. अभी हालांकि वो बर्न आउट हो चुके हैं, बट दे आर फाइटिंग फॉर यू एंड दे डू नॉट हैव द करेज, but they have true feelings for you and they want to approach you. Also what I am seeing is alignment आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में आ रहा है. वो किसी से हेल्प भी ले सकते हैं. मे बी आपको एक हो सकता है वो आपको एक एज अ टीचर देखते हो, मे बी स्पिरिचुअल टीचर और समवन हु इज़ गाइडिंग पीपल. सो जिसको लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ऐसा है आपके पर्सन, आपको ऐसा देखते हैं. सो दिस इज़ द energies of your person. So if you want a detailed reading then you can connect to me. So let's see what are the future of your connection. क्या है आपके future का. If you are new to my channel then please do not forget to subscribe. Let's see आपके person की future action क्या है आपके लिए and what is the general future of this connection. First of all I am going to check आपके person की next action क्या है आपके लिए. ओके ग्रेट. सो जो कन्फ्यूज़न की स्टेट है और जो स्टकनेस है उससे वो बाहर आने वाले हैं बहुत जल्दी ही कन्फ्यूज़न से. एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, they are going to approach you, they are going to start this relationship, step into the new beginnings of this relationship with a very clear mind and with a very strong trust on you. और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो वो आगे बढ़ने वाले हैं आपको लेकर. कन्फ्यूज़न की स्टेट से बट बहुत ज़्यादा उनको पहले डील करना पड़ेगा. कन्फ्यूज़न की एनर्जीज जो आई थी आपके रिलेशनशिप के लिए अभी कार्ड्स में, so they have to first deal with it and they are going to deal with it. I'm pretty sure that they are going to come out of the confusion. They're soon going to come out and they will be approaching you बहुत 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 ज़्यादा सरेंडर और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत डीप ट्रस्ट के साथ. दे आर नॉट गोइंग टू थिंक ट्वाइस कि कोई क्या कह रहा है, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू एंटर. दे जस्ट want to build a new connection, but they just want to initiate new beginnings with you, and they want to enter the new beginnings with the past wisdom that they have gained, with the jolly nature, with the fresh and curious energy and adventurous energy, and with the loyalty. ठीक है, challenges हैं थोड़े बहुत उनको नज़र आ रही हैं, but they are completely surrendered to the divine. They have completely surrendered themselves and they are going to come towards you. I'm feeling very strongly they are going to come towards you with a strong trust on you. But first, before that, they have to deal with the confusion. First of all, they are going to deal with it and then they are going to come. And they will, I think. They have to deal with it and they will. So yeah, this is the energy that has come out. So if this resonates then please do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon if you like my video, and you can connect with me
through detailed to get the detailed reading, more detailed reading through the through the detailed mention in the description box. So thank you so much for watching me.